Can a chart tell if somebody will meet their soulmate or not? Of course. Really? It can even tell you the time frame you will meet your soulmate. It can tell you the kind of qualities your soulmate will have. मैंने एक person के एक इसी साल 2 ट्विन्स प्रेडिक्ट किए थे, तो वो हो गया Okay. था उनके लिए। हाँ. बहुत इंटरेस्टिंग केस था, काफ़ी टाइम से उनका प्रेगनेंसी नहीं हो रहा था और जब उनको मैंने न्यूज़ दी तो हम आपको बता सकते हैं कि ये फेज़ ऐसा है, ये सिर्फ ये फेज़ थोड़ा आपके लिए खराब है, आप ध्यान रखिए अपना, यार आप ये रेमेडी कर लीजिए। तो लोग ना एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी डर जाते हैं कि ये मुझे कुछ गलत ना बोल दें। अरे गलत क्यों बोलोगे? अगर आप कभी-कभी ऐसा होता है कि कुंडली में आपका लिखा है इनसे शादी होनी है, लेकिन आपको टैरो गाइडेंस दे सकता है कि बच के रहो। Gayatri, thank you so much for coming today. Thank you very much for calling me here and I'm so happy to be here. Can I tell you, we only spoke on phone before, and you have a great voice. Thank you. And your personality matches your voice. That's so sweet of We're you. meeting first time, so I had to tell you that. That's really kind of you. And you know, it's such a good aura when you meet fellow healers and people who are already doing all of this work. So yeah, the energy goes back to you as well. Thank you. So, Gayatri, I know you are a tarot card reader. You also access Akashic records. You are also a Vedic astrologer. Is there anything else that you do? You know, there's a little bit of numerology that I do, Nice. and that's something that also guides me towards the tarot, the Acha. sun signs, the moon signs, and you हाँ. take out numbers of the birth date, and that also really helps. So I do that as well. Oh, ये कैसे काम करता है? This Like is all. now I'm starting with the questions. Okay, now this has got me very interested. Yeah. So you said कि numbers से you directly align with the readings. Reading. And then numbers guide करते हैं कि किस modality में जाना है? No, so basically, for example, if your Mulang is 2, supposing you're born on the 2nd of a month, अच्छा. so Mulang 2 will be ruled by the moon. हाँ. Okay, so हाँ. I'll do more energy in tuning with the moon signs, the moon energy cards. Okay. Cards that resonate more to do with water, with emotions, you know, because I already know what your nature is. Accordingly, I'll do an oracle spread. अच्छा. So it gives Okay. me a little insight about your nature, Okay. So हाँ, तो आपको नंबर से थोड़ा सा मेरा पर्सनालिटी के बारे में your traits. पता चल जाएगा, हाँ and then जी. then it helps during the spread also. Yeah, ये एक बहुत अच्छा guiding tool है Correct. numerology में. Correct. हाँ जी. Correct. Which is the modality you love the most? या फिर किसकी तरफ आप ज्यादा जाते I हो? love tarot. टैरो Number से one. मैं सबसे ज्यादा आकर्षित हूँ. हाँ. मैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड हूँ टैरो से. हाँ. मैंने अपना फर्स्ट टैरो कार्ड खरीदा था करीबन 9 साल पहले, 10 साल पहले. अच्छा. एक बुक स्टोर में मैं ऐसे ही चल के जा रही थी और मेरे को ये टैरो दिख गया and I bought it. जब हाँ. मैंने ये खरीदा तो मैंने सोचा मैं क्या करूँगी इसके साथ. हाँ. फिर इवेंचुअली देखा कि मैंने इसके साथ इसको यूज करके अपनी कोर्स किया टैरो में Wow. और Okay. उससे लर्न किया. तो कहीं ना कहीं ये कार्ड्स आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं. Absolutely. ये मोडालिटी खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाती है अगर आपको ये करना है तो, अगर आप चुने गए हो इसके लिए. Absolutely. Yeah. And 9 years ago, you started your journey with tarot cards. You learned the course. पहला केस याद है आपको? पहला केस बहुत क्यूट सा केस था Okay. जिसमें मैं एक लड़की के साथ कॉफी पी रही थी एक कॉफी शॉप में और उन्होंने मुझे पूछा मुझे जल्दी से बताओ मेरा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा और वेडिंग के डेट्स कब होंगे. तो मैंने बोला भाई ये तो बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, मैं कैसे बताऊं. Right. सो क्विकली मैंने अपने कार्ड्स खोले और मैंने उनको गाइडेंस दी कि ये टाइम फ्रेम है, इन महीने से इन महीने में आपकी वेडिंग होगी और आपके जो फ्यूचर स्पाउस की जो क्वालिटीज हैं वो ये ऐसे 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 होंगी. Oh, okay. तो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है कि जब वो हुआ और उन्होंने मुझे वापस बोला ये बात कि इसी टाइम फ्रेम में हुआ है, ये पर्सन भी वैसे हैं, तो मुझे और कॉन्फिडेंस मिला रीड करने के लिए. Correct. So, tarot किस किस situation में you can count 100% on the prediction? और वो कैसे situation है जहाँ पे tarot card को consult नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है टैरो कार्ड्स आपके लव लाइफ, करियर, हेल्थ, जॉब, हर चीज की गाइडेंस आपको दे सकते हैं. तो टैरो एक गाइडिंग टूल के लिए यूज करें तो बेटर है. आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जॉब लिया जाए या वो जॉब, तो हम आपको बोलेंगे चलो ये वाले में ज्यादा लीन करिए क्योंकि ये आपके लिए अच्छा होगा. तो एक गाइडेंस, एक हीलिंग, एक काउंसलिंग के वे से अगर आप टैरो देखेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा.
क्वेश्चंस क्या नहीं पूछने चाहिए, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एरिया में लोगों को गाइडेंस चाहिए होता है आज के ज़माने में। राइट और टैरो 100% एक्यूरेट जो रीडर है उसकी एक्यूरेसी 100% या तो सारे क्वेश्चंस के लिए है या बिल्कुल ही नहीं है। सो 50-50 नहीं हो सकता इसमें। और इसमें आपकी इंट्यूशन भी उतनी ही काम करती है। बिल्कुल, इसमें मेनली इंट्यूशन ही काम करती है हमारी। और ऑफ कोर्स साइंस, ये साइंस है, ये नॉलेज है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हम पढ़ाई करते हैं, टैरो की भी हम पढ़ाई करते हैं। ओके, तो व्हेन यू आर डूइंग अ रीडिंग, उस टाइम पे कुछ आपको ऐसा गाइडेंस कहीं से आ रहा होता है, या फिर यू ऑलरेडी सी अ कार्ड एंड यू हैव दिस समटाइम्स डाउनपोर ऑफ नॉलेज, यू नो, फ्रॉम अबव, ऐसा पहली कुछ? बात तो मैं मेनली एक गॉड के साथ कनेक्ट करती हूँ सबसे ज्यादा, जो है लॉर्ड शिवा। तो पहले मैं अपने ओम नमः शिवाय के चांट्स करके, मेडिटेट करके, दूसरे पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करके फिर उनको गाइडेंस देती हूँ एज अ चैनल। राइट, कोई एक इंटरेस्टिंग केस बताइए टैरो का। मैंने एक पर्सन के एक इसी साल 2 ट्विन्स प्रेडिक्ट किए थे, तो वो हो गया ओके, था उनके लिए। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग केस था, काफी टाइम से उनका प्रेगनेंसी नहीं हो रहा था। और जब उनको मैंने न्यूज़ दी तो शी वाज सुपर राइट, हैप्पी, you know. राइट, So these kind of cases happen yeah, and they and give you really, hope, they give you faith. yeah, and they also give you the confidence, right? Right. Even more कि ये दिखा था मुझे, and then this has come true, which means that my understanding of बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी एक और चीज है, प्रोटेक्शन और रेमेडी बहुत जरूरत है उसकी। जैसे जैसे कि समझाइए। अगर हम किसी को बोलें कि अम, ये लव लाइफ की गाइडेंस है, तो उसके बाद प्रोटेक्शन रिचुअल, उनको वो लव रोज क्वार्ट्ज की ब्रेसलेट्स देना या उस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है उसके बाद, गाइडेंस के बाद। So you mean कि जब आप किसी का लव लाइफ का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद में you give them some crystals Yeah, also some to crystals. So, like I deal in crystals. So it Hmm. could be an amethyst, a rose quartz, evil eye, a pyrite, depending on a specific area of their life. They get the crystals. वो कैसे हेल्प करते हैं? वो आपको वो चीज abundance में अट्रैक्ट करेगा, वो चीज वापस। For example, you wear love rose quartz, it will increase the love element of your life. If you wear pyrite, it will magnetize money into your life and opportunities जो उन चीजों से मिली हुई है। Now we've swiftly moved to crystals without even knowing. Yeah. अब हम crystals की बात कर ही रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है that somebody is wearing a crystal for some time, कुछ मान लीजिए पायराइट पहना हुआ है, क्रैक आ गया उसमें, what does that mean? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्रैक आना एक बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो क्रिस्टल है, राइट। तो कभी लोग कहते हैं कि नजर उतर गई। नजर उतरना एक बहुत अच्छा वे है देखना, बट कभी कभी क्रैक आने का ये मतलब होता है, इट इज अ टाइम टू वेक अप इन योर लाइफ एंड डू एन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, a particular crystal is cracked or it's not working or it breaks, अगर वो खुल गया पूरा क्रिस्टल, तो ये टाइम है जब आप उठ के कुछ काम करना शुरू करिए। ये एक वेकअप कॉल भी होता है, हमेशा बुरा नहीं हो रहा होता है। कभी कभी आपको एक साइन भी मिल रहा है कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, एंड देन यू कैन ऑलवेज बाय अ न्यू क्रिस्टल आल्सो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास टर्कोइज का फिरोजा, हाँ हाँ, क्रिस्टल ब्रेसलेट था, ओके। जो कि टूट, मैंने पहने हुए नहीं, रखे रखे टूट गया। What does that mean? दैट रियली मीन्स कि जो फिरोजा का काम था आपकी लाइफ में पूरा हो गया। Oh, उस फिरोजे का काम पूरा हो गया। okay. जो उस फिरोजे ने आपको देना था और आपकी एनर्जी एक्सचेंज थी उस क्रिस्टल के साथ, वो कंप्लीट हो गई थी उस मोमेंट पर। उस अब टाइम है वो क्रिस्टल को आप ऑफ कोर्स अपने घर से प्यार से निकाल के एक पौधे में डाल दीजिए, एक अर्थ में डाल दीजिए जहाँ से वो आए हैं क्रिस्टल्स, और रिप्लेस करिए एनर्जी से। तो इसका मतलब उस क्रिस्टल का काम हो गया, या फिरोजा का एज सच जो काम था वो हो गया? मुझे रिप्लेस करने की जरूरत है कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फिरोजा दोबारा भी पहन सकते। अच्छा, इस वाले का काम हो गया, इसमें जितनी एनर्जी देनी थी वो दे दी, खत्म हो गया। और कई बार ऐसा होता है, क्रिस्टल एक पोरस ऑब्जेक्ट है जो बहुत एनर्जी लेके आता है आपकी लाइफ में। जब वो आपको सारी डाउनफॉल्स दे देता है उस एनर्जी की, जब वो आपको उस बेनिफिट्स, जैसे मेडिसिन होता है, वो बेनिफिट दे देता है, देन इट काइंड ऑफ इवेपोरेट्स फ्रॉम योर लाइफ। या दैट्स ब्यूटीफुल आल्सो। यस। समटाइम्स ऐसा मैंने देखा है कि कई बार आपका मन करता है कि बहुत सारे क्रिस्टल्स पहनूं, और कई बार मन करता है कि नहीं, मुझे बस हो बिल्कुल नहीं गया, पहना। बस हो गया। इसका क्या मतलब है?
समटाइम्स आप जैसे आप लोगों को देखोगे, मैंने देखो अभी एक क्रिस्टल पहना हुआ है, हाँ। ठीक है। कभी कभी मैं लोगों को देखती हूँ जिन्होंने 5 6 10 हम्म, पहने भी हुए हैं। उस समय वो क्रिस्टल्स के बिगिनर्स फेज पे है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, ये दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद क्रिस्टल्स। ओके। जब आपको इंट्यूशन फील हो जाएगी कि मुझे यही क्रिस्टल पहनना है, उस टाइम आप क्रिस्टल से ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, ओके। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें क्रिस्टल्स पहनना ही नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, यू डोंट हैव टू वेयर क्रिस्टल्स ऑल द टाइम, बट इट्स इवन अ अगर नेचुरल एनर्जी। वो आपके साथ में भी है, लाइक और यू या डोंट हैव टू। एग्जैक्टली। बेडसाइड टेबल में भी कोई लोग रखते हैं, कोई लोग पिलो के नीचे भी रखते हैं, हम्म। कोई लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, क्रिस्टल्स हम्म। रख के ड्रीम्स भी आती हैं। हम्म। ये सब तो वर्क होता ही है। तो पहनना जरूरी नहीं है, अगर आसपास भी है, then they're still doing their work बिल्कुल, for अगर you. आप एक फॉर एग्जांपल क्लियर क्वार्ट्स अपने बेडसाइड टेबल पे रखोगे, आपकी थिंकिंग इतनी क्लियर हो जाएगी दैट यू विल फील पीसफुल, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड। और अगर मेरे पास मान लीजिए कुछ 10-15 क्रिस्टल्स हैं, सब मैं एक बोल में रखती हूँ, सब मेरे बेड साइड टेबल पे हैं, इज दैट ग्रेट? और सबकी एनर्जी काम कर रही आई एम है नॉट या? सी आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन। मैं इस चीज की बिग फैन नहीं हूँ कि बहुत सारे क्रिस्टल्स इकट्ठे रखने हैं, एक शो पीस बनाना है। क्रिस्टल्स मेरे लिए शो पीस नहीं है, क्रिस्टल्स मेरे लिए एक पॉजिटिव ऑरा, एक रीजन के लिए आपने लिए हैं। तो अगर आप इतने सारे रख के भी नहीं, अगर आपने एक लव रोज क्वार्ट्स भी रख लिया क्योंकि आपकी लाइफ में आपने लव अट्रैक्ट करना है, तो वो भी चलेगा। ओके, तो पर्पस देखकर। पर्पस देख के क्रिस्टल्स खरीदिए, आप हाँ। क्रिस्टल देख के क्रिस्टल मत खरीदो, इट्स नॉट अ शो पीस। बट समटाइम्स ये भी तो बोलते हैं ना लोग कि आपको कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो लो। पता है, ये एक बहुत ही वैसे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि सब लोगों की इंट्यूशन इतनी हाई नहीं है कि उनको पता है कि इनको कौन सा क्रिस्टल हाँ, चाहिए, हाँ। ठीक है। नहीं, जो अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको पता है कि आपको ये वाला क्रिस्टल चाहिए। इसी टाइम पे हीलर्स और रीडर्स का इंटरवेंशन आता है, जब वो आपको गाइडेंस देते हैं कि इस समय आपको ये क्रिस्टल का यूज करना है। हर डॉक्टर आपको नहीं, डॉक्टर तो आपको ये नहीं बोलेगा ना कि तुम्हें कौन सी दवाई खानी है, वो देखेगा आपको इस दवाई की जरूरत है अभी। So by looking at their chart their या chart, tarot their से, tarot, their oracles, the yeah, reading. then you can suggest ये crystal पहनो, this Yeah, is what you need. right. Sometimes I open a Celtic cross, which is a huge tarot, Right. and I see couple of things that they may need. So then I guide them accordingly. Crystal से related कोई interesting case है? एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है क्लाइंट के साथ, जिनको बिल्कुल भी उनका बिजनेस नहीं बढ़ा था। वो बॉम्बे में ही रहते हैं एक्चुअली। तो वो अपने ना नेसन स्टेज में थे, बिगिनर स्टेज में ऑफ हिज ब्रांड, एंड उनको मैंने गोल्डन पायराइट भेजा, एंड ही स्टार्टेड रिसीविंग ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली। अब ये पायराइट का मैजिक है या इनका फेथ का है या गाइडेंस का है, ये सारी कलेक्टिव चीज है। तो क्रिस्टल्स डू वर्क, अगर आप उनमें फेथ रखोगे, बिलीव करोगे, तो क्रिस्टल 100% आपके लिए काम करेगा। Okay. और मैंने अपने क्लाइंट के इतनी अच्छी स्टोरीज सुनी है, इतने अच्छे फीडबैक सुने कि मुझे पता है क्रिस्टल्स वर्क। Okay. Since you're in numerology and crystals also, तो हम can we go through the numbers, मतलब मूलांक, और उनके लिए कौन सा क्रिस्टल होना चाहिए? Yes, हाँ? yes, yes, yes. So let's start. Let's start. Number 1. Number 1 I will say जो है मूलांक 1। हाँ। तो मूलांक 1 के लोग होते हैं 1, 10, 28, और कौन सा होता है मूलांक 1, 10, 28 और 19। इनका जो टोटल एडअप होता है 1। ये होते हैं सूर्य से रूल्ड। इनका जो क्रिस्टल होना चाहिए वो होना चाहिए सिट्रीन। Okay. सिट्रीन होता है जो सूर्य की एनर्जी मैक्सिमाइज करता है। अच्छा। बिकॉज वो सूर्य से रूल्ड है, दे शुड यूज दैट एज एन एडवांटेज। सो Okay. सिट्रीन इज वेरी गुड फॉर मूलांक 1। Okay. Nice. And 2. so 2 is 2, 20, 11, 29. हाँ। Mulang 2 is ruled by the moon, and the best for them, the best for them, by the way, is pearl. Okay. Pearl is what they should wear, Uh-huh. but the crystal that they should wear is clear quartz. Okay. Okay, clear quartz really enhances their intuition, it relaxes them, it's very good. Even smoky clear quartz is good for them.
पर जिसका जो चंद्रमा से चंद्रमा से रूल होते हैं। रूल्ड होते हैं वो तो ऑलरेडी बहुत शांत होंगे, ये पहन के और शांत नहीं हो जाएंगे? नहीं, चंद्रमा से सारे लोग जो रूल्ड हैं, हाँ। सारे लोग शांत नहीं है। जैसे कि 29 हम्म 29 है मंगल और मून। हर नंबर के एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, तो वो फायर एलिमेंट भी आ जाता है, वो मून भी आ जाता है। राइट। और 29 में क्या होता है ना, जब पानी में आग लगती है तो आउटबर्स्ट होता है, राइट? ओके। सो हर मूलांक का अलग अलग वेरिएशन है। हम खाली एक नंबर नहीं देख के बोल सकते। Right. वी हैव टू सी ऑल At नंबर्स। this point, I have to tell you, I am हाँ. a 29. You're a 29? Yeah. Okay. So you have Mangal and Moon. Okay. You will definitely need clear quartz. You're wearing Okay. white, excellent. You're Okay. wearing silver, excellent for you. You're Okay. wearing very good colors today. All Because fluke. कभी कभी क्या होता है ना 29 के अंदर, things can become volatile for them. They have to balance their moon. Emotionally बहुत ज़्यादा volatile रहते हैं because I think Because of Mangal. Yes. Right. You Okay. are 29, so you know. I know myself. All again. twos are not the same, by the Yeah, way. You yeah, know? yeah, I understand. Right. So 3 के Three. देखते हैं. 3 is ruled by Jupiter. Hmm. I will say Jupiter is wisdom के लिए. मैं तो हमेशा amethyst recommend करती हूँ. अच्छा, 3 को. amethyst का क्या properties होता है? Amethyst की property होती है compassion, Okay. relaxation और guidance की. All तो right. वैसे ही 3 नंबर इतनी अच्छी guidance देते हैं कि हाँ. amethyst से वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन बांट पाते हैं. Oh, उनकी nice. थ्रोट चक्र भी क्लियर हो जाती है, वो बोल भी सकते हैं आपको. Right. क्योंकि 3 का जो एडवांटेज है, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन. Yeah. सो एमेथिस्ट वो एनहांस कर लेता है. And I think they're deep thinkers also. More than deep thinkers, they are very good at guiding people and making their work happen. They're very intelligent. Hmm. ये भी मैं personal experience से बोल रही हूँ because my daughter is 3. She's 3, Yeah. so she'll be a very good guide to you, like a mentor, and she'll tell you कि मम्मी ये करो, ये मत करो, and वो अच्छा होगा आपके लिए. Yeah, yeah. Yeah. I know it coming from. It'll be good for you. Okay, number 4 then. Number 4 is ruled by Rahu. Okay. Okay. Rahu is not always scary. Uh-huh. Rahu can make you a very good charismatic personality as well. Okay. I will suggest that for number 4, थोड़े से hot headed होते हैं, गर्मी उनमें ज्यादा होती है. Okay. तो फिरोजा में हमेशा recommend करूंगी. फिरोजा क्या होता है, उनका फायर को ठंडा कर देता है. अच्छा. तो उनके Okay. hot headedness को, over discipline को थोड़ा relax कर देता है. Nice. So blues are very good for number 4. So all Firoza में they can wear Firoza. They can do blue agate is very good for number 4. lapis lazuli. Lapis lazuli is very good. All blues. All blues are All good blues. for. Why? Because उनमें knowledge इतनी होती है, कभी-कभी लोग उनको समझ नहीं पाते हैं. थोड़े ठंडे दिमाग से प्यार से बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे नंबर 4. क्योंकि blue is also communication का throat chakra वो का. कभी-कभी नंबर 4 के लोग इंफॉर्मेशन बहुत होती है बट बहुत रूडली बोल लेते हैं. Correct. तो उनको आराम से प्यार से करना है तो ठीक हो जाते हैं. Nice. Okay. Then number 5. नंबर 5 इज रूल्ड बाय बुध मर्क्यूरी. वैसे नंबर 5 एक बहुत प्यारा नंबर है. अच्छा. नंबर 5 बिजनेस में एक्सीलेंट. मैं तो नंबर 5 को हमेशा टाइगर आई दे देती हूँ. Okay. टाइगर आई बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नंबर 5 बिजनेस में एक्सीलेंट होते हैं, कम्युनिकेशन में एक्सीलेंट होते हैं, सबसे उनकी बनती है. Correct. सबसे बनती है उनकी. Yeah. एंड बहुत फ्रेंडली होते हैं. तो टाइगर आई इनकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, तो वो और थोड़ा शाइन करते हैं सोसाइटी Yeah. में. I can relate to that. I have 2 people number 5 and Yeah. I know what you're saying. Excellent communicators and socially they're with everybody. And they're also very adventurous. So they love making new friends. Yeah, correct, Yeah, correct. yeah. And yeah, they're lovely people. Absolutely. Very nice people. Yeah. Okay, number 6. Number 6 is ruled by Shukra. Okay. शुक्र के कलर्स तो आप जानते ही हो. नहीं. वीनस. अच्छा. वीनस के क्या कलर्स हैं? पिंक्स एंड वाइट्स. मेरे को लगता है, अभी भी मुझे लगता है कि शुक्र का जो नंबर 6 है, दे शुड वेयर रोज क्वार्ट्स. Okay. क्यों? बिकॉज उनकी प्यार की एनर्जी, वो इतने अपने फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, इतने गुड फ्रेंड्स होते हैं कि शुक्र की एनर्जी एनहांस करने के लिए वो पिंक पहन लेना, ऑटोमेटिकली उनकी चीजें बन जाती हैं. अच्छा. लग्जरी ऑटोमेटिकली आ जाती है उनके पास. And this is irrespective of man and woman. No. सबके लिए So same. soul has no gender.
Right. Your soul has no gender, Right. so it doesn't matter. Okay, so they should wear pink wale crystals. They should wear rose quartz. They can even wear amethyst. They can wear pearls. But I like pink for sure. Okay, nice. Number 7. नंबर 7 के जो केतु वाले लोग होते हैं वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। उनका एक ही ड्रॉबैक है कि बहुत आइसोलेटेड होते हैं। तो जो उनको बोलना है, जो करना है, वो कर ही नहीं पाते क्योंकि वो इतना आइसोलेटेड जब बैक सीट ले लेते हैं हर चीज में। अच्छा। सो केतु जितना आपको स्पिरिचुअल बनाता है उतना ही आपको पीछे भी ले जाता है। ठीक है, मेरी एक रिकमेंडेशन है, अगर केतु को बिजनेस स्टार्ट करना है या काम करना है, एक्शन करना है, केतु को पायराइट जरूर पहनना चाहिए। अच्छा, पायराइट जरूर पहनना चाहिए। ये क्या पायराइट क्या पायराइट इज होता अ मनी मैग्नेट। तो जो केतु ऑटोमेटिकली एक्शन नहीं लेता ना, पायराइट आपको करवाएगा एक्शन। है? ओके, आपको इंटरेस्टिंग। मनी के थ्रू या वर्क कुछ ना कुछ करवाएगा। राइट, ओके। एंड नंबर 8. Number 8 of course is such a beautiful number. Okay, it's ruled by Saturn. शनि का नंबर है। शनि का तो नंबर आपको पता ही है, ब्लैक है। हाँ. लेकिन सारे नंबर 8 को मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको यू नो ब्लैक वाला जो रोज क्वार्ट्ज पहना, ये क्रिस्टल पहनना है या इविल आई पहनना है। I will always tell them to wear a yellow, like a citrine. Okay. Citrine is good for 8. Okay, how's that? Citrine was Citrine, sun's color. sun's color, but it will enhance their luck. शनि का अच्छा. luck enhance करेगा. It will increase their manifestation. They can even wear a money magnet bracelet. Okay. Number 8 can wear a money magnet bracelet because already the infinity sign of 8 is open for them, that portal. They can become super wealthy people. I'm telling you, the billionaires, the millionaires, the big crorepati will definitely have an 8 in their chart. अच्छा. 100%. Oh wow. And Saturn will give you slowly, but it will surely give you. तो इन लोगों के पास आना ही है, आना ही है, wealth, पर- money, success. पर उसको एनहांस करने के लिए ये सिट्रीन पहनेंगे तो लक बढ़ेगा. Love बढ़ेगा. Okay, great. Good. Positivity Good बढ़ेगी, faith बढ़ेगी, hope बढ़ेगी, optimism बढ़ेगी. Okay, okay, nice. Then number 9. So number 9 is मंगल का, जो आपके पास भी एक नंबर है 9 का, जो है मार्स. हाँ. मार्स, आपने वो देखा है मोंगा, रेड कॉरल? रेड कॉरल के कलर का एक क्रिस्टल भी आता है. अच्छा. Okay, which is called a red coral crystal. I can't show it to you right now, but it's a very beautiful red coral crystal. Okay. They can wear that. Okay. Reds are good for For number 9. For वो number क्या एनहांस करेगा? देखो नंबर 9 का जो बेस्ट एडवांटेज है हाँ. कि 9 कंप्लीशन का नंबर है. अच्छा. ठीक है, तो वो बहुत डीपली चीजें कंप्लीट करते हैं और इस दुनिया में आते हैं लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करने. खुद की भी चीजें उन्होंने कंप्लीट करनी है, दूसरों की भी करवानी है. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव नंबर. उनका ओनली एक ड्रॉबैक है कि वो जल्दी से टेम्पर लूज कर सकते हैं. अच्छा. उसके लिए वी काइंड ऑफ गिव देम रेड कॉरल. Okay. And Red coral, really enhances their focus, their work, takes them in the right direction. okay, interesting. I think that was a deep dive in numerology and crystals. And जिसके जो numbers होंगे, I think now they know at least basic उनको कौन सा crystal चाहिए, Right. है ना? Right. Because I'm sure ये question आपके पास बहुत आता ही होगा कि मैं एक generally कौन सा crystal पहनूं? हाँ, a lot of times. Yeah. And a lot of times ऐसे भी questions आते हैं कि ये problem है, इसको solve करने के लिए मुझे बता दो जल्दी से क्या चाहिए. So that depends. Correct, correct. Do you also look at birth chart and then tell them what crystals? Yes, Kundli. Kundli. So I open the Kundli on my iPad and all of that. I look at their houses, how they're placed, and then I give them guidance accordingly. But astrology with tarot, Yeah. I don't do all the time. Okay. I don't do that. I am either doing tarot for them or I'm doing astrology. I keep them separate. अच्छा. Tell me about astrology. Like एक बहुत बड़ा debate है astrology में कि ये अगर मेरे birth chart पे है तो ये होना ही है, destiny है. Beautiful. Okay, so जब हम पैदा हुए थे, ठीक है? So when we were born, तो एक स्काई में एक शॉट लेते हैं, पिक्चर. जैसे हम स्क्रीन में भी शॉट ले रहे हैं. तो उसी समय जब हम पैदा हुए थे एक शॉट मिला, भगवान ने लिया या जैसे भी आपकी रिपोर्ट बनी है कि आपके स्टार्स कैसे प्लेस थे जब आप पैदा हुए हो. Right. वो चिट्ठी आपके पेरेंट्स को मिल जाती है, आपको मिल हाँ. जाती है कि आपका सैटर्न 11th हाउस में है,
आपका राहु इधर है, आपका वीनस 7th हाउस में है, ये सब चार्ट में बन जाते हैं। अब जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं तब हम इस रिपोर्ट को पढ़ पाते हैं। जब इस रिपोर्ट को पढ़ पाते हैं तब हम आपको बता पाते हैं कि ये इस समय ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आप डिसाइड करो आपको करना क्या है। अच्छा, पॉसिबिलिटीज बताता है। पॉसिबिलिटीज आते हैं। एस्ट्रोलॉजी की एक्यूरेसी आज तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये होगा ही होगा, ओके। ठीक है? जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि ये से ये फेज ऐसा है, ये से ये फेज थोड़ा आपके लिए खराब है, आप ध्यान रखिए अपना, यार आप ये रेमेडी कर लीजिए। तो लोग ना एस्ट्रोलॉजी से काफी डर जाते हैं कि ये मुझे कुछ गलत ना बोल दें। अरे गलत क्यों बोलोगे? अगर आप अच्छे से इसकी पढ़ाई करोगे और सामने वाले को समझाओगे प्यार से और उसको गाइडेंस दोगे अच्छे से, तो वो अच्छी राह में ही चले जाएंगे ना। करेक्ट। सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज रीडिंग फॉर यू। राइट राइट। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट डेस्टिनी, इसमें तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही आती है। ऑफ कोर्स, राइट। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आपकी लाइफ में ये होगा ही होगा एस्ट्रोलॉजी से। जैसे कि अगर शनि महाराज जो है हमारे शनि देव आपके ही घर में बैठे हैं, वो तो बोलेंगे नॉनवेज भी मत खाओ, ड्रिंक भी मत करो, ये भी मत करो, वो भी मत करो। क्यों बोलेंगे? क्योंकि दे शनि देव विल वांट यू टू बिकम डिसिप्लिन्ड। दैट्स एन इंडिकेशन। अब फिर भी वो सारी गलत चीजें करोगे तो आप अपना शनि खराब करोगे, राइट? सो सिंपल थिंग्स लाइक दैट। राइट। और इसमें विल पावर कितना रोल प्ले करती है? सपोज अगर पॉसिबिलिटी है कि मेरा बिजनेस डूबने वाला है या कुछ बहुत गंदा होने देखो, वाला है। विल पावर एक बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ भगवान की देन है। हर इंसान को विल पावर नहीं मिलती। कोई ड्रग एडिक्ट है तो वो ड्रग से कैसे निकलेगा आप ये नहीं कह सकते तो तुम विल पावर लेके आओ, वो करेक्ट। तो उसके पास है ही नहीं विल पावर, राइट? कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके स्टार्स प्लेसमेंट इफेक्ट करते हैं। कैसे? सपोज किसी की विल पावर इतनी ही लो है, उस पे हमें दोबारा दोबारा वर्क करना पड़ता है, हील करके उसको गाइडेंस देके। तो थोड़ी बहुत चीजें तो होती हैं जो आपके स्टार्स में परमानेंट चीजें होती हैं, ओके, जो आपकी बेसिक जो पर्सनालिटी बेसिक पर्सनालिटी है जिस पे आप वर्क कर सकते हो। राइट। और कई बार एस्ट्रोलॉजर्स बहुत इंसिस्ट करते हैं कि आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो क्या बहुत फर्क पड़ जाता है? काफी फर्क पड़ जाता है, डिग्रीज पे फर्क पड़ जाता है। जैसे कि 29 डिग्रीज का मून है किसी का, तो वो उसी टाइम पर है, दूसरे टाइम पे शायद डिग्रीज आपकी वेरिएट करते रहें। ओके। तो टाइम का इम्पोर्टेंस। टाइम का इम्पोर्टेंस हमेशा होता है। ओके। एक हमने पहले पॉडकास्ट किया था विद अनदर एस्ट्रोलॉजर, तो शायद ये बात उस टाइम पे निकल के आई थी कि 4 पीरियड दिन के, मतलब 4 में बांट सकते हैं। नहीं, करना नहीं चाहिए। वैसे हम 12 बजे का भी लेते हैं जनरल, ओके। कि उस डेट पे सब 12 बजे का टाइम लेके जनरल हो जाता है, पर वो बहुत जनरल है, फिर वो डिटेल्ड आपको मिलेगा नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन। ओके। तो लाइक अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो फॉर टाइम यू, चाहिए। टाइम चाहिए चाहिए। हाँ ओके। जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो ऐसा कैसे होता है कि ट्विन्स हैं, सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, सेम प्लेस, सेम सिटी, सब कुछ सेम है बट उनका, ट्विंस तो सेम नहीं है सब कुछ, उनका नाम अलग है, नाम उनके अलग है। सोल्स अलग हैं, उनकी आत्मा अलग है। पर उनका चार्ट तो सेम बनेगा ना? चार्ट दिखने में सेम आएगा, बट जरूरी नहीं है कि उनकी बिहेवियर्स भी, क्योंकि उनकी बिहेवियर भी मैटर करती है, उनके सोल इम्प्रेशंस भी मैटर, उनके सोल पैटर्न्स भी मैटर करते हैं, पर उनके पास्ट लाइफ में उन्होंने क्या किया है। कोई हम्म। ओल्ड सोल आ जाता है, कोई यंग सोल आ जाता है, बहुत डिटेल में जाना पड़ता है इसके लिए। पर सपोज अगर दोनों का टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सेम है, सिर्फ नाम अलग है, चार्ट उनका सेम उनके बनेगा। चॉइसेस अलग होंगे। हाँ, तो पॉसिबिलिटी सेम सपोजिंग है। नहीं, सपोजिंग 2 भाई हैं, हाँ। उनका चार्ट सेम है, सब कुछ सेम है। एक को चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी लगती है, दूसरे को सिगरेट पीनी अच्छी लगती है। सब कुछ सेम है, जो सिगरेट पिएगा वो तबीयत खराब होगी, जो आइसक्रीम खाएगा उसके दांत में दर्द होगी। तो वो भी उसकी चॉइस है। पॉसिबिलिटीज दोनों की लाइफ में सिमिलर आएंगी, सिमिलर आएंगी, बट yes. it's then their Then, willpower and yes, their choice what to yes, do with those yes, yes. possibilities. And this is where choice plays a very important. Right. Choice is always going to take you to a higher plane for your greatest and highest good. अच्छा, okay. So whenever I give guidance to somebody, I don't say कि आपको ये करना है,
आप ये करना चाहते हो, ये आपके लिए अच्छा होगा, आप भगवान की भक्ति में हो, भगवान से प्रे करो, अगर आप ये आपको लगता है ये अच्छा है आपके लिए तो प्लीज करिए। Right, okay. Right. So giving them the choice is what you do, and then what they do with that choice is up to them. 100%। Okay. Can astrology predict we coming to love and relationships now? Okay. Yeah, Which is what which is the most most favorite Yeah. topic for everybody। yeah. Yeah, So can a chart tell if somebody will meet their soulmate or not? of course। Really? It can even tell you the time frame you will meet your soulmate. It can tell you the kind of qualities your soulmate will have. It can tell you what are the obstacles that you can may face. Okay. These are all things that are written in predictions, Achha. depending on the planet sitting in that house. For example, अगर Venus जो है शुक्र महाराज हमारे जो हमें सब कुछ देते हैं लग्जरीज, वो अगर आपके मैरिज की लाइफ में प्लेस्ड हैं तो लव भी होगा, लग्जरीज भी होंगी, सब कुछ होगा, अच्छा okay. ऑटोमेटिकली होगा आपके पास। लेकिन हम्म, बहुत लोगों के लव लाइफ के जो वो 7th हाउस है ना कुंडली वाला, उसमें बैठे होते हैं राहु। अच्छा राहु जब वहां बैठ जाते हैं तो लड़ाई तो करवाएंगे आपसे। अब okay. आपके ऊपर है कि आपने लड़ना नहीं है, अब आपने शांति से बात करना है। Choice and willpower. चॉइस, यहाँ पे फिर से चॉइस आ जाएगी। Okay. So आपने बोला बहुत लोगों के 7th हाउस में राहु रहते हैं। रह सकते हैं, राहु होते हैं तो इम्पैक्ट करते हैं आपके 7th हाउस को, आपके मैरिटल लाइफ को, आपके लव लाइफ को। अब आपको उसको डिवोर्स में लेके जाना है या नहीं जाना है, या वर्क करना है, कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, वो आपकी चॉइस है। इनकी रेमेडीज भी होती हैं। बिल्कुल। So हर रिलेशनशिप को डिवोर्स पे नहीं लेके जाना। अच्छा दिस कोई यू कैन कोई टेल फ्रॉम द हाँ, चार्ट। कोई कोई ऐसे रिश्ते हैं जो ठीक हो सकते हैं अच्छा रेमेडीज से और बातचीत से। तो ये भी उसमें दिख जाता होगा चार्ट में कि इनका ये रिलेशनशिप खत्म होगा कि नहीं होगा। हाँ, खत्म होगा, लेकिन हम करेंगे कि नहीं ये Oh, चॉइस है। interesting. Yeah. Okay. Because इसमें कर्मा भी तो ऐड हो जाते हैं लाइक अगर आपका दोनों के कर्म जुड़े हुए हैं हाँ, और एक साथ यू हैव टू लिव दोस कर्मास, आप बीच में खत्म कर रहे हो देन तो फिर You copy वापस again, आके meet फिर again. वापस आके दोबारा वो कर्म कंप्लीट करना पड़ेगा दो हाँ, सोल्स को। इसलिए correct. अच्छा है प्यार से निपटा लो। Yeah, like finish in this Finish life. in a better good way rather Yeah. than coming back again to Yeah, yeah. sort it out। Correct. Okay. I always believe that two people in a love relationship should sort out their matter very amicably and peacefully. Otherwise, you have to keep meeting that person again and Yeah. again। Correct. Compatibility देखी जाती है वैदिक चार्ट में when जब शादी की बात आती है what is compatibility in Vedic astrology? Compatibility is इस पर्सन के गुण एंड इस पर्सन के गुण कितने मैच होते हैं, ठीक है। 36 पॉइंट्स में से किसी के 22 मिलते हैं, किसी के 25 मिलते हैं, किसी के 36 पे 36 मिलते हैं, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी की मैच होती है। अच्छा और ये भी जरूरी नहीं है कि 36 से 36 मिल रहा है तो उनको शादी करनी चाहिए। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप और मैं सेम हो तो हमें शादी करनी चाहिए। okay. ऐसा भी हो सकता है कि आप और मेरे को 18 मिल रहे हैं और हमारी शादी बहुत अच्छी चल रही है। ओके तो इन गुण के अलावा भी कुछ और देखा जाता है जी, वो क्या चीज होती वो चीज होती है टेम्परमेंट, ओके तरीका आपका। वो भी देखा जा सकता है सब चार्ट सब देखा नहीं, कब लव मैरिजेस को तो हम चार्ट ही नहीं खोलते कभी कभार। मैं तो Okay. कह देती हूँ बहुत प्यार है तो आप शादी कर लो, चार्ट ही मत दिखाओ हमें। ओके और बट फिर देख आते लेना। होंगे ना केसेस जहाँ पे रिलेशनशिप में है दो लोग बट स्टिल वांट टू सी कि शादी करनी भी चाहिए कि नहीं आते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जहां जहां जरूरत नहीं है वहां पे नहीं पढ़ना चाहिए कुंडली के अंदर। कभी कभी थोड़ा अपना भी माइंड यूज करिए। बट कुंडली इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर नो, द No. प्रेजेंट एंड द पास्ट ऑल। हाँ नहीं पास्ट तो पता ही है हम्म। और हाँ इन प्रीवियस लाइफ का भी देख सकते हैं लेकिन प्रेजेंट तो वी गोइंग थ्रू प्रेजेंट बट मोस्टली लोग जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे कितने बच्चे मेरी कितनी शादी मेरा ये तो सब पूछते हैं। है ना इससे ऊपर कुछ पूछे ना तो मुझे मजा आएगा, जैसे कि बच्चे ऐसे होंगे हम उनका ध्यान कैसे रखें। तो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ कि कोई लोग जो शादी करना चाहते हैं दो लोग आपस में एंड देयर प्रॉब्ली इन अ रिलेशनशिप वेरी हैप्पी रिलेशनशिप बट वो जानना चाहते हैं कि सस्टेनेबल है देखो वो जानना चाहते हैं बिकॉज वो इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, उनको हाँ। जानने की जरूरत नहीं है इतना।
इतनी जरूरी नहीं है पढ़ने में। ओके आपका आपका आंसर ये है कि if you are in love, get married. Get married and Don't be get happy. into Don't get into anything else. Okay. Have you ever seen two people who are very incompatible but deeply in love? Yeah. They शादी just love the shadow side of the other person. Sometimes somebody is very toxic for that person and they love them. Maybe that person wants to change that other person. You never know. You never know their soul contract that they're bringing from a past life into this relationship. हाँ, वो एक दूसरे के लिए कर्म से probably कर्म बंधे हुए हैं। बंधन होते हैं, कर्म कर्म बंधन होते हैं, और जब तक वो बंधन लिखा है तब तक वो चलेगा। और ये हम चार्ट से देख सकते हैं। बिल्कुल। And what is your answer to them? My answer to them is कि जब तक आपने इनके साथ रहना है, चुप करना है, आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक तो आप रहोगे। तो जब तक रहना है प्यार से रह लो। Okay. Yeah. Yeah. Have you ever told anybody looking at the chart कि नहीं आपको ये शादी खत्म करनी हाँ, चाहिए? yes, हाँ, yes, yes. वो क्या सिचुएशन कभी कोई चंडाल योग आ गया कि कभी दिख गया मुझे कि ये पर्सन तो इसको एकदम बैड न्यूज है इसके लिए, द एनिमी एकदम ही एनिमी है, तो हम सोचते हैं एनिमी से मत करो तो अच्छा है ना। एनिमी से शादी मत करो। बहुत लोगों को एनिमी से ही शादी करनी पड़ती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं एनिमी से शादी मत करो। और अगर शादी हो गई है तब हो गई है तो फिर डिवोर्स में कितनी शांति से डिवोर्स हो वो भी देख लो, क्योंकि फिर एनिमी से जो शादी का डिवोर्स होता है उसमें बहुत टाइम लगता है, बिकॉज वो दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो डिवोर्स और भी टफ होगा एनिमीज के लिए। तो लवर से करो, फ्रेंड से करो शादी तो बेटर है आपके लिए, आप खुश रहोगे। और अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे, शादी हो गई है बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई उसमें आप रेमेडी बताते हैं या फिर आप चार्ट से बता सकते हैं कि कभी होंगे कि नहीं होंगे? बच्चे एक्चुअली लिखे होते हैं, जैसे कि आपका बर्थ, आपका डेथ और आपके बच्चे लिखे हुए हैं, ये 3-4 चीजें फिक्स्ड है। शादी नहीं लिखी होती? शादी भी लिखी है, शादी भी लिखी है, ये सब फिक्स्ड है। तो ये हम चार्ट देख के बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि लड़का होगा लड़की। हाँ, Really? योग आ जाते हैं, लड़की का ऐसा योग है वैसा योग है, सब आ जाता Wow. Okay. Suppose somebody has come to you with a question. है। आप एस्ट्रोलॉजी से भी देख रहे हो उसका आंसर और टैरो रीडिंग से भी देख रहे हो आंसर, दोनों सेम होंगे या डिफरेंस होगा? सी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ टैरो के बारे में। टैरो एक शॉर्ट टर्म गाइडिंग टूल है, ठीक है? 6 महीने 9 महीने मैक्सिमम 1 साल, इतनी तक गाइडेंस देगा आपको टैरो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो आपकी कुंडली है वो आपकी लाइफ प्रेडिक्शन करती है, दैट इज लॉन्ग टर्म। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म आंसर्स चाहिए तो टैरो बहुत अच्छा है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम, रिसेंट फ्यूचर, गाइडेंस ऑफ कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट टर्म गाइडेंस। एंड एस्ट्रोलॉजी लॉन्ग टर्म गाइडेंस देता है। रेमेडीज क्या होते हैं? टैरो में रेमेडीज मैं क्रिस्टल्स के थ्रू देती हूँ, एंड एस्ट्रोलॉजी में इट इज थ्रू जेमस्टोन्स एंड डायमंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड इट हैज नेवर हैपेंड दैट टैरो और एस्ट्रोलॉजी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है एक दूसरे को, या ऐसा हो सकता है? सी कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में आपको लिखा है इनसे शादी होनी है, लेकिन आपको टैरो गाइडेंस दे सकता है कि बच के रहो। तो ये गाइडेंस है ना? If that happens, what do you do? Then that happens, then we give the remedies accordingly, that this is how you have to deal with this person. This person is like this. Okay. मैं rapid fire पूछने वाली हूँ. No cards and no charts. Okay, we'll keep everything on the side. I'll give you a situation and आप बताना कि आप tarot reading के द्वारा बताएंगे कि astrology के, I mean what is your instinct guide? ठीक है? I'm giving you a situation. Someone keeps seeing number 11, 222, 333. What is your guidance to them? My guidance to them is that angels are protecting you right now, so you're in good hands. Okay, so these are good So keep faith. Yeah. Okay, nice. So if they're dealing with something, so this is just guidance to them that when the angels are supporting you, they are your team. They're already doing work for you, so they're already by your side. So it's a good thing. Nice. Positive. इसका एक थोड़ा सा deviation भी है. ये numbers में difference क्या है? Suppose I keep seeing 111. 111 is for a lot of sun energy and positive energy, that things are really positive and bright. 222 is a love number, so love manifestations are working out for you. Oh, nice. And 3? These are all, there's a huge list of these. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, of course. Suppose somebody comes
to you tarot reading के लिए और उनके लाइफ में उनका रिलेशनशिप हेल्थ फाइनेंशियली सब कुछ नीचे जा रहा है एंड द रीडिंग इज वेरी बैड, उनको क्या करना चाहिए आप सब? मैं पहली बात तो कार्ड्स हटा के उनको पहली बार बताऊंगी ही नहीं कि वो बैड रीडिंग है। अच्छा। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ बैड देखेंगे और उनको निराश कर देंगे तो उसी समय हिम्मत हार देगा इंसान। ठीक है, तो इंसान की हिम्मत नहीं हराने के लिए आ रहा है वो मेरे पास, मैं उसको हीलिंग दे रही हूँ, तो मैं उसको फिर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे के भेजूंगी उस सेशन से कि अब ये चीज़ें न्यू फ्रेश वे से स्टार्ट करते हैं, अब आपकी लाइफ न्यू जरिए से शुरू करते हैं, जो पास में हुआ उसको खत्म करते हैं, अब से लेके भगवान की भक्ति में करेंगे, अब न्यू वेज यूज करेंगे, अब न्यू चैनल्स यूज करेंगे, अब न्यू तरकीबें यूज करेंगे काम करने की, ताकि आपकी वाइब्रेशन आगे बढ़े। And what is the one thing that you really want people to stop believing about astrology and tarot? Firstly, I know that a lot of people believe कि भाई स्कैमर्स हैं, चीटर्स हैं, ये लोग जो हमें बोल रहे हैं कुछ नहीं है, ये बस मनी मेकिंग रैकेट है, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि आपको एक रीडर ने या एक टैरो रीडर ने, एक एस्ट्रोलॉजर ने स्कैम किया है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ऐसे हैं। कोई बहुत गिने-चुने, मैं बोल रही हूँ आपको फिर से, बहुत गिने-चुने हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और रीडर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। हो सकते हैं स्कैमर्स, फेक अकाउंट्स भी होते हैं, लेकिन आप डरो मत क्योंकि अगर आप किसी अच्छे रीडर के, अच्छे हीलर के हाथ में आ जाओ तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी आपके लिए। और लोगों को ये भी डर रहता है कि एक बार हम किसी के साथ, किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के साथ मिले और इट वर्क्स आउट फॉर अस, वी विल बिकम डिपेंडेंट ऑन देम। देखो, डिपेंडेंट तो फिर आप डॉक्टर को भी मिलते हो तो आपको लगता है डिपेंडेंट हो जाओगे। डॉक्टर को क्यों मिलते हो? बुखार है होता है तो आप सिर्फ दवाई लेते हो। एक हीलर वैसे ही है, डॉक्टर का काम करता है। तो आप ठीक हो जाओ तो आपको गाइडेंस थोड़ी आराम से मिलेगी। Okay, great. One message that you want to give everybody who's listening to you. Everybody who's listening to me, I just want you to know that I'm very grateful that today I'm a part of this and I can tell you people about spirituality and astrology and tarot. I just want you people to believe that there are healers and helpers in this world who want to see you doing well and who want to see you happy. And genuinely from my heart, I wish all of you to be well and happy and safe. Perfect. That's Thank beautiful ending to this podcast. Thank you. And I wish you all the love, Thank all you. the best. Thank you. And you have a great, happy, healthy vlog. Thank you so much. Lovely tarot cards. Thank you very much. Thank you.